हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस सीरीज का 5th वीडियो है और इसमें हम जर्नल 2022 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में जो सिलेबस कवर किया है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट A and B be two events such that probability of A and probability of B both lying between 0 and 1, 0 and 1 are not included. Then which of the following statement is not true? So first thing to note here is this not true. Usually what we do is हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में and then we go ahead for checking and A हमने चेक किया और वो ट्रू आ गया और हम सीधा सीधा टिक करके आ जाएंगे। हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाई नहीं की, हमें नॉट ट्रू पूछा है। तो ये गलती मत करना, ये बहुत जनरल मिस्टेक है जो हम एग्जाम की हड़बड़ी में कर देते हैं। Okay, so let's start with checking the first option. Given that PA given B is greater than PA, which means what? PA intersection B divided by PB is greater than PA, means this is greater than PA PB. Now, what do we need to find out is PB given A, which will be equal to PA intersection B divided by PA. Now, what do we know is intersection की जो probability है वो greater than है PA PB से, so this will be greater than PA PB divide by PA, so this will be greater than PB. So basically ये statement तो हो गया true, तो ये हमारा आंसर नहीं है। Now the second statement B. If PA union B is given to be 1, which is actually equal to PA plus PB minus PA intersection B, then A and B cannot be independent. Okay, so we don't know अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो A इंटरसेक्शन B कैसा दिखेगा, तो इसलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट है, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलना चाहिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो लेट A and B are independent. Okay. उसका क्या मतलब हो जाएगा कि 1 माइनस PA प्लस माइनस PB, इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं हम। सो 1 माइनस PA माइनस PB प्लस PA इंटरसेक्शन B विच इज PA डॉट PB बाय इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दैट मीन? It means 1 minus PA, 1 minus PB is equal to 0. Which means either PA is equal to 1 or PB is equal to 1 or both. But in the question itself we are given that PA and PB lying between 0 and 1 and not equal to 1. So that means it's a contradiction, hence A and B cannot be independent. A and B cannot be independent. Easy. So that means the statement given is true again. Now the third statement, PA given B is greater than PA, which is same as PA intersection B greater than PA PB. Now we need to prove PA complement given B is less than PA complement. PA complement option C given B, what it will be? PA complement intersection B divided by PP, right? What you can write instead of this? So let's draw the diagram of A and B. This is A, this is B. Now A complement intersection B is this part. So what you can do? You can write this part as the whole B minus this intersection part. So it will be PB minus PA intersection B divided by PB divided by PB. Now, what do we know is PA given B is greater than PA. So
here we have PA given B and this is greater than PA, so this will be less than 1, cancel out होके 1 हो गया, minus PA which is same as PA complement. यही हमारा स्टेटमेंट है, दिस विल बी लेस देन PA कॉम्प्लीमेंट. अगेन ये भी ट्रू हो गया. ओ सॉरी, तो डेफिनेटली फोर्थ वन फॉल्स होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं फोर्थ को भी ट्राई. सो अगेन सेम कंडीशन इज गिवन दैट PA इंटरसेक्शन B will be greater than PA PB. Then PA complement given B complement. Now this time we have, instead of B we have B complement. So PA complement given B complement. So this will be PA complement intersection B complement divided by PB complement. Okay, so this will be what? PB complement minus P B complement intersection. Okay, let's not do it this way. Instead, what we can write for this is 1 minus PA union B. Because by De Morgan's law, this is A union B whole complement, and that is equal to 1 minus probability of A union B. Right now we have P of B complement. Okay. Now is equal to 1 minus PA union B is PA PB minus plus PA intersection P, and divide में we have PB complement. What do we know? This thing is greater than PA PB, right? Yes, this thing is greater than PA PB, so this will be greater than 1 minus PA minus PB and plus PA PB. Divide में PB complement. So which is equal to 1 minus PA multiplied by 1 minus PB. So PA complement multiplied by PB complement divided by PB complement, which is equal to PA complement. And so we are getting PA complement given B complement is greater than PA complement, but the statement is opposite. It's saying less than. So this is the false one. So this is our answer. Okay. Quite confusing, but one thing is, जैसे second option जैसे हम लोग check कर रहे थे, तो even when I was doing, I was stuck at first क्योंकि कुछ contradiction नहीं आ रहा था. PA is equal to 1, PB equal to 1. And मैंने ये check नहीं किया था कि question में it's given that it cannot be equal to 1. तो question को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, तो easy रहेगा. And अगर आप फर्स्ट टाइम में ही ये चेक कर लेते हैं कि D है वो false है और you are sure enough, तो फिर आपको बाकी सारे चेक करने की जरूरत नहीं रह जाती है. तो इट टेक्स टाइम टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, बट अगर आपको बाय लक फर्स्ट ऑप्शन ही गलत मिल जाता है, देन इट्स गुड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose that 4 persons enter a lift on the ground floor of a building. Then there are 7 floors above the ground. And each person independently chooses her exit floor as one of these 7 floors. 7 floor में से कोई भी एक floor हर एक person choose करेगा. If each of them chooses the topmost floor with probability 1/3, so probability of selecting top floor for one person is 1/3. For each of them it's 1/3, but each person chooses it independently. So अगर चारों person top floor choose करते तो उसकी probability 1/3 की पावर 4 हो जाएगी, right? Independence है. And each of the remaining floors with an equal probability. Okay. So 1/3 अगर topmost floor choose करने की probability है एक इंसान के लिए, तो बचे हुए सारे फ्लोर्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है 2/3.
अब नाउ दे आर सेइंग कि बचे हुए 6 फ्लोर्स इक्वल प्रोबेबिलिटी से वो चूज करता है, तो इसको डिवाइड बाय 6 करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी अदर फ्लोर, मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए, तो हम सीधा सीधा डिवाइड बाय 6 कर देते हैं, क्योंकि 6 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है हमें, और सम उनका होना चाहिए 2/3 के इक्वल, क्योंकि 1/3 प्रोबेबिलिटी है टॉप मोस्ट फ्लोर की, तो बचे हुए सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के 2/3 ही होनी चाहिए। तो ये हो गया 2/3 डिवाइड बाय 6, सो विच इज इक्वल टू 1/9। ओके, नाउ then the probability that no two of them exit at the same floor equals. Okay, fine. So what we need to do, we have 7 floors and हम चाहते हैं कि इन 7 में से ये 4 लोग जो है वो चारों अलग अलग फ्लोर्स चूज करें। तो सबसे पहला तो ये कि अब 4 फ्लोर्स में से कोई एक फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर है या नहीं है। जो 4 फ्लोर इन 4 लोगों ने चूज किए उनमें से किसी भी एक जने का टॉप मोस्ट फ्लोर है कि नहीं है, क्योंकि टॉप मोस्ट फ्लोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। बचे हुए 6 में से अगर 4 चूज कर रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, तो हमें अलग से केस देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर टॉप मोस्ट फ्लोर भी उस सिलेक्शन में है देन प्रोबेबिलिटीज अलग हो जाएगी। तो केस 1 कि 1 पर्सन चूजेस टॉप मोस्ट फ्लोर। तो डिफरेंट केसेस हमें ऐड करने रहेंगे। तो एक केस ये हो गया कि एक कोई पर्सन है जो टॉप मोस्ट फ्लोर चूज कर रहा है, बाकी सब तो नीचे वाले जो फ्लोर है वो चूज कर रहे हैं। एंड देन सेकंड केस वो हो जाएगा जिसमें टॉप मोस्ट फ्लोर नहीं चूज कर रहा कोई भी, जो 6 बचे हुए फ्लोर है उनमें से। नाउ अगर एक फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर चूज हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, अब बचे हुए जो हमारे पास 6 फ्लोर्स है उनमें से हमें 3 फ्लोर्स चूज करना है। तो 6 चूज 3 ऑप्शन है हमारे पास में, एंड हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/9, तो ये हो गया 1/9 क्यूब, क्योंकि 3 फ्लोर्स चूज किए। नाउ वन मोर थिंग टू नोट हियर इज कि वो चारों पर्सन अलग अलग हैं। तो A B C D, लेट्स से एक बार A ने टॉप मोस्ट फ्लोर चूज किया, एक बार हो सकता है B ने किया, एक बार हो सकता है C ने किया, एक बार हो सकता है D ने किया। बेसिकली हमारे पास अगर 4 फ्लोर्स है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 एंड F4, देन इन 4 पर्सन्स में इन फ्लोर्स को अरेंज करने की कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट फ्लोर किसी भी एक पर्सन को दे दो तो 4 तरीके। सेकंड फ्लोर बचे हुए 3 में से किसी को जाएगा। थर्ड F3 डजंट मीन इट्स थर्ड फ्लोर, इट्स जस्ट सेलेक्टेड थर्ड फ्लोर। ओके, सो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तरीके से हम इन पर्सन्स को अरेंज कर सकते हैं कि कौन किसके पास जाएगा। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब केस 2 क्या है कि ये चारों जो लोग हैं ये चारों ही टॉप मोस्ट फ्लोर चूज ना करे, बचे हुए फ्लोर्स में से चूज करे। तो अगेन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने 4 डिफरेंट फ्लोर्स चूज किए हैं, एंड 6 चूज 4, क्योंकि 4 फ्लोर्स हमें चूज करने हैं, एंड देन हर एक फ्लोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/9, so 1/9 पावर 4। नाउ इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या मिल जाएगा? 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, 9 की पावर 3 भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो बचा अंदर यहाँ पे 6 चूज 3 विच इज इक्वल टू 6 4 6 5 एंड 3 2 1 5 4 20 डिवाइडेड बाय 3 दिस 3, एंड ये पूरा बाहर चला गया, 4 फैक्टोरियल भी बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा? 6 choose 4 which is same as 6 choose 2 which is same as 6 5 3 2 1 which is 3 into 5 15 and 15 by हमारे पास यहाँ पे एक 9 की पावर बचेगी, सो 15। नाउ लेट्स टेक 3 की पावर भी 3 की पावर 1/3 आउट, so 3 into 9 power 3, so this will be 20 plus 15/3 which is 3, 15/3 which is 5, so it will be
25 multiplied by 4 factorial, which is 4321, divided by 9 power 3 multiplied by 3. So 3 से 3 cancel हो गया, and then 25, 400 and 200, so this will be equal to 200 divided by 9 power 3, which is 81 into 9, which is 729. So your answer is the first one. Easy. Once again I'll explain this. हमारे पास 4 लोग हैं और हमारे पास 7 फ्लोर्स है. 7 फ्लोर्स में से इन हर एक पर्सन के लिए फ्लोर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम. फर्स्ट टॉप मोस्ट फ्लोर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/3 एंड बचे हुए सबकी इक्वल होनी चाहिए. अब टोटल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1, इन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी 2/3 होनी चाहिए क्योंकि 1/3 हमने ऑलरेडी अलॉट कर दी. एंड इन सबकी 2/3 में इन सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, तो 2/3 को 6 से डिवाइड कर देंगे. 6 फ्लोर है तो हर एक फ्लोर की हो गई 1/9 एंड टॉप मोस्ट की हो गई 1/3. नाउ अब जो 4 लोग हैं वो किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकते हैं, राइट. तो अगर मान लेते हैं कि जो 4 फ्लोर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें से कोई एक फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर है एंड एक दूसरा केस जिसमें कोई सा भी फ्लोर टॉप मोस्ट नहीं है. तो जब हमारे पास में एक फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर है तो बचे हुए 6 में से हमको 3 फ्लोर चूज करना है. तो 6 चूज 3, टॉप मोस्ट फ्लोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड बचे हुए 3 फ्लोर चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/9 पावर 3. नाउ ये 4 लोग, ये 4 फ्लोर्स हमने चूज कर दिए, लेकिन इन 4 फ्लोर्स को इन चारों से अलाइन भी तो करना है. 4 जो पर्सन है तो किस वे में अरेंज, कितने नंबर ऑफ वेज में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनके पास. मतलब फ्लोर 1 फ्लोर पर्सन 1 के पास जाएगा, फ्लोर 2 पर्सन 2 के पास जाएगा एंड 3 के पास, 4 के पास. मे बी देयर इज सम अदर वे 1 2 के पास जाए, 2 1 के पास जाए एंड समथिंग लाइक दिस. टोटल 4 फैक्टोरियल वेज हो गए. सिमिलरली जब अगर कोई सा भी फ्लोर सेलेक्टेड फ्लोर्स में से कोई सा भी फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर नहीं है, इन दैट केस हमें इन 6 फ्लोर्स में से 4 फ्लोर चूज करने हैं. तो 6 + 4 एंड देन प्रोबेबिलिटी सबकी 1/9 है तो 1/9 की पावर 4 एंड 4 फैक्टोरियल अगेन फॉर द सेम रीजन. सो टोटल इन केसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200/7. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज वन ऑफ a really great question and it uses the concepts from multiplication theorem, total law of probability, law of total probability and this one Bayes theorem. So this is something interesting. So let's start. Year is chosen at random from set of years 2012, 13 to 21. From the chosen year a month is chosen at random. Okay, so अगर एक ईयर कोई ईयर हमने चूज कर लिया है, पहली चीज तो कोई पर्टिकुलर ईयर चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, क्योंकि रैंडमली चूज कर रहे हैं और ये टोटल 10 साल है. तो लेट मी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1/10. नाउ अब मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम किसी भी ईयर में से. अगेन हर एक साल में 12 ही महीने होते हैं तो सेलेक्टिंग अ मंथ फ्रॉम अ गिवन ईयर is 1/12. Now from the chosen month the day is chosen at random. Okay, बट ये तो सब में अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मंथ है, क्योंकि किसी में 31 डेज होते हैं, किसी में 28, 29, किसी में 30. सो इट डिपेंड्स कि डे, कोई पर्टिकुलर डे चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिपेंड करता है मंथ. गिवन दैट द चूजन डे इज 29th of a month, okay, the conditional probability that the chosen month is February equals. What do we need? We need to find out probability chosen month is Feb, given that the select chosen date is 29th.
डायरेक्टली तो नहीं बता सकते। अगर हमें उल्टा पूछते थे कि फैब है तो 29 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम शायद कुछ भी बता पाते। प्रॉब्ली हो सकता है 0 भी होती है, 1/29 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ईयर है। तो लेकिन एटलीस्ट वो हमारे पास समहाउ देयर इज वे टू कंप्यूट, बट इसको कंप्यूट करने का कोई तरीका नहीं है। वन मोर थिंग, आई विल राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फैब गिवन 29। ओके, अगर मैं मंथ लिखूं तो मंथ हो जाएगा, एंड ईयर लिखूं तो ईयर। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं ये लिखूंगी क्योंकि दिस इज रियली लॉन्ग फॉर्म। तो लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट दिस। तो सीधा सीधा है कि हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, बट ऑपोजिट वे अराउंड अगर मैं दे दे तो हम समहाउ निकाल सकते हैं कंडीशन मंथ ईयर पे डाल के, राइट। तो हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे। बेस थ्योरम, so probability of 20 Feb given 29 is equal to what? Probability of 29 given Feb multiplied by probability of Feb. Okay. Or let me not write it like this. Instead, let me write it like this: divided by probability of 29. Okay. Now, अब मैं 29th एंड फैब सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा ईयर हमने सेलेक्ट किया, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल ईयर्स के ऊपर हमारा सिलेक्शन एक्सपेंड कर रहे हैं एंड सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे कि पर्टिकुलर ईयर में, मतलब दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 29th एंड फेब में क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारी इस इवेंट की, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी 29th इंटरसेक्शन फेब इंटरसेक्शन पर्टिकुलर ईयर, एंड ईयर के ऊपर मैं ले लूंगी सम। यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये यूनियन है ओवर ऑल पॉसिबल ईयर्स। तो मैं, और वो यूनियन जो है वो डिसजॉइंट यूनियन है क्योंकि सारे ईयर्स डिसजॉइंट है। तो वहां से मैं बाहर समीशन लेके आ सकती हूँ क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो ईयर्स है मेरे 2012 से लेके 2021। और डिवाइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 29। सो अगेन 29th क्योंकि हर महीने में आती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरसेक्शन विद मंथ। सो प्रोबेबिलिटी 29th इंटरसेक्शन विद मंथ किसी भी महीने में आ सकती है, क्योंकि साल में तो हम सिर्फ मंथ की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि एक साल में महीना चूज करने की, कोई पर्टिकुलर महीना चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/12, बट मंथ चूज होने के बाद में 29 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम डायरेक्टली ईयर में 29 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते। तो इसलिए इंटरसेक्शन ईयर नहीं है, मंथ है। यहाँ पे मंथ हो गया जैन टू दिसंबर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब यूज करना है मेरे को, हमें मल्टीप्लीकेशन भी 2012 से 2021। व्हाट आई कैन राइट इट, 29 इंटरसेक्शन फैब गिवन ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ईयर, राइट। नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं, एंड डिवाइड में, अब यहाँ पे मंथ हो गया फाइनलाइज, 29 हो गया फाइनलाइज, बट अब जब फैब की बात आती है तो हर साल हमारे पास जरूरी नहीं है कि 29 हो, हर एक ईयर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें ईयर भी साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगेन डिवाइड में भी summation over year 2012 to 2021, summation over month Jan to December, probability 29 intersection month intersection year.
अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 29th इंटरसेक्शन फेब गिवन ईयर है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लेट मी राइट इट डाउन एंड देन एक्सप्लेन। दिस विल बी okay, probably I'll not write it like this, instead multiplication rule के according ही मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, and then probability of fab intersection year, which means fab given an year and multiply by probability of that year। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा S3 S2 S1, so S3 given S1 intersection S2, then multiply by probability S2 given S1 and then multiply by probability of S1। okay, ये चेंजेस मैंने इस अकॉर्डिंग किए हैं कि हमें ये प्रोबेबिलिटीज, हमें जो ये प्रोबेबिलिटीज है ये हमें पता हो। तो अभी आपको समझ में आएगा कि आप जिस तरीके से मैंने पहले लिखा था वो उस तरीके से हम क्यों नहीं कर सकते, वो प्रोबेबिलिटीज हमें नहीं पता है, बट अगर ये चीजें हो, ये वाली प्रोबेबिलिटीज है तो ये हमें पता है। सिमिलरली नीचे भी हमें सेम ही करना है, डिनोमिनेटर में भी, कि 29th गिवन मंथ एंड ईयर, देन probability of month given an year and then probability of year। now one thing, probability of selecting year throughout all the years is same, it's 1/10। okay, so ये probability of year आ जाएगा बाहर 1/10, so I am taking it out 1/10। now probability of fab given an year is also common, क्योंकि 1/12 है हर महीने की, तो फैब की भी 1/12 होगी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/12 इंटू 1/10 एंड ये समीशन हो जाएगा 29 ऑफ फैब ऑफ ईयर दिस। तो अगर हमारे पास 2012 का फैब्रुअरी है सिलेक्टेड गिवन, देन उसमें 29 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/29। बट अगर 2013 का फैब्रुअरी सिलेक्टेड है गिवन टू फैब्रुअरी 2013, 29 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0, राइट। सो इस तरीके से सिर्फ 2012, 2016 एंड 2020 में, क्योंकि ये लीप ईयर्स थे, सिर्फ इन्हीं तीनों में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 1/29 के इक्वल, बाकी सब 0। तो इट विल बी इक्वल टू 1/12 इंटू 1/10 इंटू 3/29, राइट ना। डिवाइड में हमारे पास क्या है, अगेन सिमिलरली ईयर एंड मंथ की प्रोबेबिलिटीज तो आ जाएगी बाहर, तो ये हो गया ईयर, ओके 2012 से 2021, ये हो जाएगा 1/10 और हर एक महीने की 1/12 विच इज ऑल, वो भी कॉमन है, ठीक है। बट यहाँ पे समेशन है मंथ में भी, जैन टू दिसंबर and probability of 29 given month and year। ये कैसे निकालेंगे, अब अगर 2012 का जनवरी है, तो जनवरी 2012 अगर दिया है तो 29 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/31। अब किसी भी ईयर का जनवरी दिया हो, हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/31 है, राइट। तो 10 सालों की जनवरी के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई, सिर्फ डिनोमिनेटर काउंट करके 1/12 इंटू 1/10। अब जो 10 साल है, हर एक साल के लिए जनवरी में 29 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/31 प्लस फेब में इट जस्ट 3/29, क्योंकि सिर्फ 3 सालों में हमारे पास में 29 आएगा, प्लस मार्च में 29 आता है बट 31 डेज है अगेन, सो 10 इंटू 1/31 प्लस मार्च अप्रैल में 30 डेज है, तो इसलिए 10 इंटू 1/30। आई होप यू आर गेटिंग व्हाई 10 इज देयर, क्योंकि हम हर साल के ऊपर सम ले रहे हैं, एंड मतलब जब जनवरी कितनी बार आएगा, टोटल 2012 से 2021 टोटल 10 बार जनवरी आने वाला है, तो हर एक साल के लिए वो 1/31 ही आएगी वैल्यू, प्लस
ओके, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन। अब जिन जिन महीनों में हमारे पास 31 डेज होते हैं उनमें हमारे पास हमेशा वैल्यू 10/31 आएगी। तो लेट्स काउंट कि कितने महीनों में हमारे पास 31 डेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हो गए हमारे पास 7 मंथ्स। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 1/31 प्लस 3/29 स्पेसिफिक केस है क्योंकि फैब का केस है, प्लस 30 डेज कितनों में आते हैं, 1 2 3 4 महीनों में हमारे पास 30 डेज आते हैं। तो 4 इंटू 10/30, 10 इंटू 30, 10 इंटू 1/30। सो बेसिकली ये जो पूरा जो हमारा एक्सपेंशन है ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये जो हमने नीचे एक्सप्रेशन दिया 70/31 प्लस 3/29 प्लस 4/3। अब ये 1/12 1/10 ऊपर भी है नीचे भी है तो दोनों साइड से कट हो जाएंगे। ये सिर्फ डिनोमिनेटर है, याद रखना, पता चले कि इसी को आप आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी लिख के आ गए। तो ये सिर्फ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ये रहा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 3/29 डिवाइडेड बाय 70/31 प्लस 3/29 प्लस 4/3। if you compute it will be equal to 279/9965. Probably I can compute it right away and tell you ये कैसे होगा। Maybe let's do this, but I think it will be hard because 29 into 31 into 3, ये तो यहाँ पे हमारा LCM आने वाला है क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। And then computing 70 into 29 into 3 and then so on 4 into 31 into 29 will be difficult, but मैंने ये compute किया हुआ है so it will be equal to this, so the first option will be your answer. So computation थोड़ी ज़्यादा है लेकिन एग्जाम में वैसे भी कैलकुलेटर अलाउ है तो नॉट अ प्रॉब्लम। सो बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तीनों अप्लाई हुए हैं एक साथ। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज हुई है और इसी को निकालने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का भी यूज किया है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ट्रिकी कि अगर आप ईयर नहीं देख के सीधा मंथ देख के कंप्लीट करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस वीडियो विल बी रियली लॉन्ग बट ठीक है। 5 men go to a restaurant together and each of them orders a dish that is different from the dishes ordered by other members of the group. मतलब 5 dishes है, D1, D2, D3, D4, D5। एंड 5 ही हमारे पास मैन है, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5। However, the waiter serves the dishes randomly. Then the probability that exactly one of them gets the dish he ordered equals. अब 5 जनों में ये 5 डिशेस कैसे भी सर्व हो सकती है क्योंकि रैंडमली सर्व की जा रही है। हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ एक जने को उसकी ऑर्डर की हुई डिश मिले, बाकी सबको ना मिले। तो सबसे पहले तो हम इसके फेवरेबल टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल वेज में वो सर्व कर सकता है। तो टोटल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इज 5 फैक्टोरियल क्योंकि 5 चीजें हैं, 5 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब ये है फेवरेबल केसेस। सो फेवरेबल केस में सबसे पहला तो है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट्स द डिश ही ऑर्डर्ड। तो सबसे पहले तो हमें उस पर्सन को ढूंढना है या उस पर्सन को सेलेक्ट करना है जिसको उसकी डिश मिलेगी। तो वो हम कर सकते हैं 5 choose 1 वेज में। ओके, नाउ बचे हुए 4 लोगों को उनकी ऑर्डर की हुई डिश नहीं मिलनी चाहिए। तो ये होता है डी अरेंजमेंट। एंड डी अरेंजमेंट मीन्स अगर लेट्स से ये
5 चूज 1 में हमने M1 को सेलेक्ट किया है, तो बचे हुए M2, M3, M4, M5 है ना, इनको किसी को भी अपनी डिश नहीं मिलेगी, सबको कुछ और ही मिलेगा। तो उसके नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसे टोटल n लोग हो तो n डीअरेंजमेंट बोला जाता है इसको, ऑफ n थिंग्स लेट्स से, और कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 by 3 factorial plus minus 1 power 10. ओके, सो यहाँ पे 5 में से एक जना हमने चूज कर लिया जिसको उसकी डिश मिलेगी, एंड बचे हुए 4 को उनकी डिशेस नहीं मिलनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 फैक्टोरियल। 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो 0 होता है। 1 by 2 माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 4. So this will be equal to 5 into 4 3 4 फैक्टोरियल को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 3 12 माइनस 4 प्लस 1. So this will be equal to 5 into 9. And divide में हमारे पास total number of cases 5 factorial. So probability will be 5 into 9 divided by 5 factorial, which is equal to nothing but 9 by 4 3 2 1, which is 3 by 8, which is equal to 0.375. Probably this should be the answer. Let me see if this is correct. It's 54. Yeah, it's 0.375. So it's easy, nothing. Favorable divided by total number of cases. I hope you like the video. Please give my videos thumbs up and also share and subscribe. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर आप लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।